Hi students, good morning. Now what we'll be doing today we'll be discussing the same topic of physics, that is electrostatics, and we'll be continuing with the same topic. So if you have seen the previous video, उसमें हम लोगों ने introduction किया था for the electrostatics के लिए. So by the time I am writing the part, let's repeat the definitions. So what technically do you mean by the word electrostatics? Electrostatics is nothing else but that branch of physics which deals with charges at rest, जिसमें charges move नहीं करते. उस दिन हम लोगों ने इसमें एक basic fundamental law के बारे में बात किया था, which was known as Coulomb's law. What was Coulomb's law? Coulomb's law was nothing else but it says that if there are two charges which are kept in air and if there is a force in between them, because these both can be oppositely charged, can be same charge, then the force is directly proportional to the product of these two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay. उसके बाद में हम लोगों ने उसके कुछ terms के बारे में बात करी थी, say the dielectric constant, say the epsilon naught which is known as the permittivity. So आज हम क्या करने वाले हैं, हमने देखा था charges दो टाइप के होते हैं, positive charge and negative charge. Now कुछ बेसिक चीजें प्लीज ध्यान रखना. ना ये आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी वो आपको अपने आप मालूम ही होगा. लाइक चार्जेस repel each other. Like charges repel each other. Okay, and then comes the unlike charges. Unlike charges attract each other. So if I am talking about the charge positive and positive, they both are going to be shown like this. वो एक दूसरे को repel करेंगे. If I am talking about negative and negative, they both are going to be showing like this. On the other hand, if I talk about positive and negative, they both will be attracted towards each other. And if I am talking about negative and positive, they both also will be attracting towards each other. As I told you at that day, the charges technically are nothing but is deficiency in an atom. जब भी कभी वो कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, and since we know that electrons carry negative charges, यदि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और यदि वो अभी तक न्यूट्रल था और उसमें से नेगेटिव निकल गया, तो इक्वालिटी के लिए क्या आना चाहिए? पॉजिटिव. यदि कोई एक स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है क्या हुआ होगा, उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन्स और लिए होंगे. यदि उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे तो कॉमन सेंस दैट पर्टिकुलर स्पीशीज वुड हैव बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द अदर स्पीशीज जिसने लूज करे होंगे इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो व्हेनेवर समबडी टॉक्स अबाउट द वर्ड पॉजिटिवली चार्ज, दैट मींस इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. Okay, whenever somebody is talking about negative charge, it has gained electrons. It's that simple. So it has lost electrons, it has gained electrons. Now जब भी हम कभी charges के बारे में बात कर रहे हैं, charges, we are talking about the two charges, that is positive as well as the negative charge. Okay, the same part. Now these particular charges have got some characteristics. For example, the first and very important characteristic is it is a conserved quantity. Conserved quantity, short form. Okay, conserved quantity. Now what do you mean by the word conserved quantity? Conserved quantity का मतलब कि कुछ भी आप प्रोसेस करो, आप चार्जेस को बीच में कहीं गायब नहीं कर सकते. यदि आपने कहीं पे गायब किया भी है तो वो दूसरी जगह पर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम द सेम मार्कर, मैंने इसको इस सो-कॉल्ड टी शर्ट के ऊपर में मैंने इसको रब कर दिया. नाउ वी नो दैट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल रीजन के वजह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैदा होती है. सो इफ समबडी टॉक्स अबाउट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज नथिंग एल्स बट इज फ्रिक्शन. यदि आप कभी भी किसी चीजों को नहीं घिसोगे, नहीं रगड़ोगे, तो वो ना तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना वो नेगेटिव होंगे, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू लूज एंड नोबडी इज गोइंग टू गेन. एवरीबडी विल रिमेन द सेम. नाउ कंजर्व्ड क्वांटिटी,
Now when I am talking about the word conserved quantity, और मान लो कि कोई भी एक चार्ज है जो कि से सपोज करो वो एक एटम है, वो एक न्यूट्रल एटम है, ओके। अभी तक इसने ना कुछ गेन किया ना कुछ लूज किया। मान लो कोई एक हवा आई और उसने उसको ऐसे करके रब कर दिया, रब टकरा गया, ओके। जब वो टकराएगा तो हवा ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके निकाल करके अपने पास में ले लिए। तो इसका मतलब है दैट पर्टिकुलर एयर इज नाउ गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड while this particular body is going to be positively charged. Now if I am talking about the word positive and negative, or right now I have given you the example of this marker. Say this particular marker has been rubbed against my body, and if this marker has been hard rubbed against my body, let us assume that this particular t-shirt has got some loose electrons. So they are going to lose electrons and these electrons are going to come on the surface, okay. अब ना मुझे बताओ कि अब ये स्पीशीज और इस स्पीशीज में कौन नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां से यहां पर आए हैं, थिंक अबाउट इट, इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां से यहां आए हैं तो इसका मतलब है यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहां पर नेगेटिवली चार्ज, दैट इज दैट सिंपल। सो व्हेनेवर समबडी टॉक्स अबाउट द वर्ड चार्जेस, ऐसा नहीं हो सकता कि सर बस वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कहीं पर नेगेटिव भी आया होगा। सर फिर हम नेगेटिव को क्यों नहीं काउंट करते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर, दैट्स द रीजन व्हाई, ओके। सो दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, केवल पॉजिटिव कुछ नहीं होता। और सिंपल मतलब तो डरने की जरूरत नहीं है। सो सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड गॉड, देन डेविल हैज टू बी ओवर देयर इफ यू आर बिलीविंग इन गॉड, इफ, ओके। If you do not believe in God, तो आपके लिए तो पूरी दुनिया सेम ही है, there is no devil, there is no God. But if you believe in demons, skeletons, devils, okay, all those zombies kind of things, then you have to believe in God also. Because see, दोनों चीजें equal and opposite के अंदर ही होती हैं। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, जितना एक जगह से लूज होगा उतना ही दूसरी जगह पर गेन भी होगा, ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट, it is a quantized, charge is quantized in nature. What is this new word quantized? Quantized का सिंपल मतलब होता है charges exist in numbers, integral packets के अंदर होते हैं। What do you mean by integral packets or the numbers? Say for example, Q should be equals to, we know that Q is the symbol of charge and the unit of Q is coulomb. Q is equals to Ne. What is N? The number of electrons. So let's write Q should be equals to number of electrons, and E should be equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And what is this? This is charge on an electron. That's so simple. यदि वो इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, यदि वो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके। नाउ so charge is a conserved quantity. Conserved quantity बता दिया, charge is also quantized. Quantized means वो हमेशा numbers में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It cannot be 1.2 charge, 0.75 charge, नहीं हो सकता, it is not possible, okay. What do you mean by this particular electron? That is nothing else but is एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, fine, okay. आगे बढ़ते हैं। The third part is it is additive in nature, very important, because यहीं से आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाता है and this chapter would end up. Of course, अभी right now we'll be talking about the Coulomb's law in vector form. Let's talk about the word additive. Additive का मतलब क्या होता है? Very simple. Now इसके ऊपर में 2 या 3 दिन पहले किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था and I told him the answer. It's very simple. Suppose कर लो मेरे पास में एक चार्ज है, so let's make a charge somewhere over here. This charge, my fault. Okay, this charge has got a charge, sorry, this atom has got a charge of say +7 coulombs. सर आपने प्लस का साइन क्यों बनाया? Now you already know क्यों बनाया। इसका मतलब है यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो इस पे कितना चार्ज है? +7 coulombs. There is another atom, it has got 0 coulomb. 0 coulomb. So this is Q1, this is Q2, 0 coulomb.
ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? एडिटिव का मतलब होगा जब भी मैं कभी इसको इसके पास में लाऊंगा तो दोनों पे चार्जेस इक्वली एड अप हो जाएंगे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे। यदि मैंने इस बॉडी को इसके पास में लाया और टच करा दिया, लेट अस से दिस पर्टिकुलर पार्ट इज बीइंग टच्ड नाउ, यदि मैंने इसको टच कराया तो क्या होगा? जो चार्जेस होंगे वो यहां से यहां पर मूव कर जाएंगे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। वी विल नॉट यूज द वर्ड मूव, वी विल यूज इक्वली चार्ज अप हो जाएंगे। सो यदि ये 7 कूलम है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 7 नहीं, टोटल चार्ज इस पे 7 था, तो आप सिंपल क्या करोगे? 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 और ये भी हो जाएगा 7/2 कूलम। गॉट दिस? Now let's take an hypothetical condition to make this a next level question. किसी ने बोला there is a charge A, ओके, इस पे चार्ज है 2 कूलम का। एक और चार्ज है B, इस पे है चार्ज 6 कूलम्स का। किसी ने बोला एक कोई बॉडी है, वो बॉडी पहले फर्स्ट ये भी अनचार्ज है 0 कूलम्स, लेट अस से C बॉडी है ये, ओके। किसी ने बोला एक अनचार्ज्ड बॉडी है, यदि मैंने इसको इससे टच कराया, फर्स्ट पार्ट, यदि मैंने इसको इससे टच करवाया तो क्या हो जाएगा? 2 कूलम का जो चार्ज है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो इस पे कितना आ जाएगा? 1 कूलम, और इस पे भी कितना आ जाएगा? 1 कूलम, राइट। अब मैंने इन दोनों को मिलाने के बाद में, क्योंकि दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब उसके बाद में मैंने इस 1 कूलम के चार्ज को दोबारा से इससे टच करा दिया। अब क्या लगता है क्या हो जाएगा? 1 + 6, 1 + 6 विल बी व्हाट? 7, तो 7/2, सिंपल एवरेज करना होता है। तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? 7/2 एंड 7/2। सर नहीं समझ में आया, कैसे किया? वेरी सिंपल, दिस प्लस दिस अपॉन 2, 2 + 0/2 is 1, तो ये भी 1, ये भी 1। Now this charge has been again made to touch this particular atom, say for around a minute, 30 seconds, 15 seconds, it does not matter regarding time. इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे? 1 कूलम + 6 कूलम, 1 + 6 is going to become 7/2, तो ये भी 7/2, ये भी 7/2। Got this? Now let's try and understand a question or some questions based on this phenomena. But उसके पहले एक last topic complete करते हैं। तो बताइए guys, congratulations, your first topic of this part is all the way over. Let's move. So I am just rubbing on to this. बस आज का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, Q = NE. Now let's move on to this part. Let us say suppose I have got पहले तो अच्छा टॉपिक अपन खत्म कर लेते हैं। Guys, you guys have been watching video, which is good, and you guys did give the test, which is also good. Guys, again and again I am requesting you, do not worry about the part of marks obtained as of now. It's very basic, it's very starting in the year, and this could be the last thing on earth that the students just lose the morale altogether. Keep on seeing the videos, keep on understanding something or the other thing new, keep on doing questions. Guys, believe me, स्टार्टिंग में थोड़ा पेनफुल टास्क होगा, बट आई एम श्योर आगे जाकर के इट विल बी स्मूथ इनफ। अ स्मॉल स्टोरी बिफोर बाय द वे कंप्लीटिंग दिस Coulomb's law in vector form and then doing around 2 and 3 numericals. I normally used to walk a lot. Okay, so I'm a walkaholic, you can say. So since अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, there was nothing much to do, so I thought of going on for a jog altogether. कि why shouldn't I start jogging and then gradually running? So I said, okay, fine. So there are so many apps available on the net free of cost, of course, being an Indian. So I, downloaded one of the app, and it, by the way, made me transit. Transit means move करना from one particular, say, walking to jogging. So उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एक्टिविटी को ब्रेक किया हुआ था। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6 and Day 7. उन्होंने एक एक्टिविटी मुझे बताया। Day 1 को आपको कुछ नहीं करना। Day 1 पे आपको अराउंड 1 मिनट का वॉक करना है, and then आपको 1 minute jog करना है, and this you have to do it for around 8 times, and then you can cool off, do whatever you feel like. I did it. It was damn simple. 1 minute of jog, come on, मतलब बुड्ढा हूँ but इतना भी नहीं. So 1 minute of jog I did. So I thought of jumping over. I said this is nonsense.
Let's by the way jump it over, and I directly moved on to the day number 2. Same day on day number 1. उसमें था walk for by the way 1 minute and jog for 2 minutes. No problem, I jog for 2 minutes. Okay, fine. Of course, in the last minute, और ये भी activity 8 times repeat करना था. In the last minute, I started literally panting. Okay, fine, no problem. मेरा walk वाला part भी complete हो गया, and somehow actually मैं उस दिन walk भी बहुत अच्छा नहीं हुआ. I came back and the muscles actually got sore up. They just sored. Now, moral of the story is that particular guy जिसने भी वो plan बनाया होगा, I needed to trust him, तभी तो मैंने उसका ऐप डाउनलोड किया था. यदि ट्रस्ट ही नहीं था तो फिर उसके यहाँ पर आए ही क्यों? When you are trusting somebody, that means you are asking him or her to maneuver you. आपको सही रास्ते पे लेके जाए. Now, when I am trying to download or upload the videos, I can see by the way only few of the you people actually do see it because thinking that sir ये तो बहुत ही अभी small वाला part है, basic वाला part है. यदि ये उतना by the way simple वाला part होता तो I am sure कि आपको सारा का सारा topic समझ में आ जाता है and everybody would have got full marks. If you did get full marks, fantastic. But if you did not, that means that there was some problem in understanding that video. So you need to go back again and see that. And believe me, today I once again started my jog from that 1 minute part as a punishment. Why? Because level पे ही कर लेता हूँ, पहले इन्हीं की बात सुन लेता हूँ, हो जाएगा. But problem is जब भी हमें थोड़ा सा आना चालू हो जाता है, we just tend to rush, which is not good. Follow that regime. It is very boring, I know, but हो जाएगा. Okay, fine. So let's now start with the part of Coulomb's law. Coulomb's law in vector form. Now guys, I don't know what other teacher normally teaches you. I can only tell you that this is the official method of the CBSE board or the NCERT book. So I won't say that only my method is right and rest all the other methods are wrong. But guys, एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा common sense भी use करना. I am a firm believer in Bappa as in Ganesh ji, but that does not means कि firm believe करते करते मैं कोई पागलपने का काम कर लूँ. मुझे मालूम है कि जब भी मुझे कोई problem होगी तो Bappa is going to help me. But standing in front of a train and thinking that Bappa is going to help me is foolishness. Don't you think so? So please do remember that vector form आपके जो books हैं, जो reference books हैं, उनमें जो लिखा हुआ है आप उनको follow कर लो, ज़्यादा better होगा rather than random something जो किसी ने भी अभी तक नहीं करा हुआ है. मालूम पड़ा जो invigilator होगा, जो teacher होगा, वो फिर आपको marks नहीं देगा. And of course यदि आपको marks नहीं चाहिए तो you can follow any of the method whichever you feel like. I am either way flexible, whichever method. So I can tell you what do you mean by the word vector form. सबसे पहले vector का मतलब समझो. It is a quantity or a mathematical thing which have got magnitude as well as direction also. So यदि कोई चीज़ यहाँ पर जा रही है, so it can be termed as positive. यदि कोई चीज़ यहाँ जा रही है, it can be termed as negative. इसका vice versa या opposite भी true होता है. यदि कोई चीज़ यहाँ जा रही है और आपने उसको बोला negative, कोई चीज़ यहाँ जा रही है तो उसे positive मानना पड़ेगा. तो यदि मैंने यहाँ पर किसी चीज़ को a वेक्टर बोला है तो मुझे इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे -a वेक्टर बोलना पड़ेगा. करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ अनदर सिंपल फॉर्मूला बिफोर वी प्रोसीड इज you need to understand what is vector. A vector is equals to, it can be any vector, A vector is equals to, that is the modulus of the, matlab the magnitude of the vector dot A cap. What is A cap? A cap is known as unit vector. Unit vector का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये केवल डायरेक्शन बता रहा होता है. सो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वेक्टर को बनाने के लिए. नंबर जिसको आप बोलते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो आपको रास्ता बताता है किस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, नाउ अब आते हैं कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक बाय द वे दीस पर्टिकुलर टू चार्जेस. सो देयर इज दिस पर्टिकुलर चार्ज, इसको मैंने नाम दे दिया से प्लस क्यू, and there is once again say this particular charge which is also being given as plus q. तो दोनों इक्वल चार्जेस हैं, आप कुछ भी ले सकते हो. यहाँ से यहाँ को मैंने इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, बीच में डिस्टेंस है r, सेंटर टू सेंटर. ओके, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है r.
अब सबसे पहले मैं लगाऊंगा फोर्स, इसको मैंने बोल दिया चार्ज नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया चार्ज नंबर 2, F12. Now how will you read this? Force on 1 due to second, force on first, इस पर कितना फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड. नाउ कम्स द क्वेश्चन, सर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, इसका मतलब है ये इसको किस डायरेक्शन में धक्का मारेगा? तो ये इसको मारेगा इस डायरेक्शन में धक्का. कॉमन सेंस, व्हाई? बिकॉज लाइक चार्जेस हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, सो ये जाएगा इस डायरेक्शन में. तो इसका मतलब है मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड. ओके, सो मैंने यहां पर ले लिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड. फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देन कम्स Q1 Q2, या इसको Q स्क्वायर ही ले लेते हैं बिकॉज दोनों सेम ही हैं. सो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. सर ये तो हो गया. अब उसके बाद में आपको डालना पड़ेगा R कैप. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड R कैप? R कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि अपने को वेक्टर फॉर्म में चाहिए इक्वेशन. नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू राइट R कैप, तो R कैप की केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी. R कैप का मतलब होगा एक्चुअली में ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे जा रहा है. ये जा रहा है इस डायरेक्शन, फ्रॉम सेकेंड टुवर्ड्स द फर्स्ट. सेकेंड से फर्स्ट की तरफ में देखो एरो जा रहा है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? R21 कैप. ओके, सो वंस अगेन रिपीटिंग, F12 should be equals to 1/4 pi epsilon naught Q square by R square R21 cap. राइट. अब आपको सपोज करो इसी वाले पर्टिकुलर पार्ट को यदि आपको लिखना है, बिकॉज कई बुक्स के अंदर कंफ्यूजन कराने के लिए आपको ये ऐसे दे देते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, F12 equals to 1/4 pi epsilon naught Q square by R cube dot R21 cap. अब सर ये कहां से आ गया R21 वाला पार्ट? यूनिट वेक्टर निकालते कैसे? A वेक्टर अपॉन मॉड A. आप खुद देखो. और यदि मुझे A कैप निकालना होगा, जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ये इसको लाकर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा A वेक्टर अपॉन मॉड A. मॉड A का मतलब वैल्यू ही होती है, तो इसको अपन A लिख देते हैं. सो यदि मुझे यहां से ये यूनिट वेक्टर हटाना है, तो मैंने क्या किया? R21 वेक्टर अपॉन R पहले से ही नीचे R स्क्वायर था, तो ये क्या बन गया है? R क्यूब. सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. देन आते हैं F21 वाले पार्ट पे. फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट. ये इसको रेपेल करेगा इस डायरेक्शन में. फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर एंड डॉट R कैप 1/2. क्यों? बिकॉज इस बार ये जो डायरेक्शन है ये कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड. ओके, सो ये हो गया ऐसे वाले पार्ट में. अगेन इसको चेंज करना है, तो आप लिख देना F21 should be equals to 1/4 pi epsilon naught Q square by R cube and dot R cap and then 1/2. So ये आ गया मेरे पास में. Let's name this particular part as second. अब यदि आप ढंग से देखोगे तो दोनों के दोनों चार्जेस तो सेम ही हैं. यदि दोनों के दोनों चार्जेस ऑल टुगेदर सेम है, इसका मतलब जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा उतना फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा. F12 should be equals to F21. दोनों के दोनों इक्वली तो फोर्सेस होंगे, केवल मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखो तो इन अ वे हाँ. यदि वो दोनों के दोनों सेम होंगे, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं. वेक्टर क्वांटिटी में एक ही इशू है, इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में विच इज पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में विच इज नेगेटिव. तो यहां पर आप लिखोगे बट R12 वेक्टर should be equals to minus
R21 वेक्टर। सर अब ये इसका मतलब कैसे हुआ? R12 का मतलब क्या हुआ? 1 से 2 पर जा रहा था वो इस डायरेक्शन में और 2 से 1 पे इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट है। तो यदि एक को आप पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे को क्या मानोगे? नेगेटिव। तो इसका मतलब है क्या मैं R21 की जगह पर या R12 की जगह पर क्या मैं R21 डाल सकता हूं? तो यहां पर आ गया, इफ R12 इक्वल्स टू माइनस R21 then F12 vector should be equals to minus F21 vector. It's that simple. सर ऐसे कैसे? कॉमन सेंस है, दोनों में फोर्सेस तो इक्वल ही हैं क्योंकि ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट है। सो सिंस R1 से 2 की तरफ में जा रहा था और इसमें R2 से 1 की तरफ में आ रहा था, तो इसका मतलब फोर्सेस तो इक्वल है, बट दोनों में सिंबल किस चीज का है? माइनस साइन का। अब इसका मतलब समझो, इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। यदि कभी भी कोई टग ऑफ वॉर होता है, टग ऑफ वॉर मतलब जिसमें आप खींच रहे होते हो और आपका सपोज कर लो आप एक फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन्स का और दूसरा वाला बंदा लगा रहा है फोर्स 98 न्यूटन्स का, whom do you think is going to win this particular match? Common sense, it's going to be you, because you are applying a force in this direction of 100 newtons. He will be applying a force in this direction with 98 newtons. Common sense बताओ, यदि आप जीतोगे तो कितना फोर्स अभी भी आपके पास में रिमेनिंग होगा? 100 न्यूटन्स, 98 न्यूटन्स। तो कॉमन सेंस इट विल बी 100 माइनस 98, क्योंकि 100 को यदि आपने पॉजिटिव मान लिया तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 100 माइनस 98 शुड बी इक्वल्स टू 2 न्यूटन्स। सो इसका मतलब है आप कितने से जीतोगे? 2 न्यूटन्स। That's so simple. Did you understand this? So this is known as Coulomb's law in vector form. Let's move on to the last part of it and then let's see the questions. So the part is, it is known as superposition principle. Superposition principle. What do you mean by superposition principle? Superposition principle is nothing else but is that if n number of points are over there, yeah, if n number of charges are over there, then the total force between these charges would always be equal to the algebraic sum. Algebraic sum. What do you mean by this algebraic sum? यदि कोई एक वेक्टर यहां पर जा रहा है, कोई एक वेक्टर यहां पर फोर्स मार रहा है, तो आपको सिंपल अकॉर्डिंग टू क्लास 11th वेक्टर लॉ इन ट्रायंगुलर फॉर्म आपको बस उनका सम निकालना होगा। और ये गाइस कॉमन सेंस भी है। सपोज कर लो यदि मेरे पास में एक फोर्स है, ये रहा मेरे पास में Q1, ये रहा मेरे पास में Q2, ये रहा मेरे पास में Q3। If suppose I am applying a force right from this direction to this direction, then A force इस पर लगा रहा है from this direction to this direction, then the resultant force is always going to be from this direction to this direction. So आप कैसे निकालोगे? टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? F Q1 Q2 F Q1 Q2 plus F Q2 Q3 plus F Q1 Q3 should be equals to what? 0. That's all. It's simple word, तीनों का एडिशन ही आपको रिजल्टेंट देगा. That is all. This plus this should be equal to this. That is what the vector, algebraic sum of vector equation is. Did you understand this? Okay. Let's try and do a question if we have got time. Unfortunately, we don't. So we are going to stop this particular part over here. Tomorrow, it is going to be only a numerical batch, जहाँ पर हम कल केवल न्यूमेरिकल से ही चालू करेंगे. So what I'll do is I'll make sure that I'll write half of the board with the questions and we'll start solving. So at least we'll take a target of around 5 questions from different books and then we'll solve it. Okay. Thank you guys so much for being so patient with me. And guys, hopefully that you should watch videos and you should, by the way, start solving questions. Okay. Thank you so much guys. Enjoy and take care. Bye.